Hello everyone, welcome to KVS Shiksha. I am Priyanka Datta, currently working in Kendriya Vidyalaya as a guest teacher. Now I am going to share my interview experience in different Kendriya Vidyalayas for the post of PRT for the session 2023-24. I have already uploaded one of my interview experience video. आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देख लीजिए. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो ये चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. मैंने ये भी बताया कि इंटरव्यू को अटेंड करना क्यों ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, केंद्रीय विद्यालय IIT खड़गपुर एंड AFS हलवा. टुगेदर इंटरव्यू वॉज हेल्ड ऑन 24th March. How many candidates appeared there? Almost 90 candidates were appeared there. My rank was 7. How many board members were there? 3 board members were there. At first, ma'am asked me to recite a Hindi poem. I have recited the Hindi poem. Then ma'am asked me the pronunciation of few Hindi word. Okay, जैसे स श. Okay, जैसे तलव्य श एंड दंतन्य स. सो ऐसे बहुत सारा जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है आप वो भी थोड़ा सा देख लीजिए. और संयुक्त अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन है जैसे ग, स्र, त्र, ये सब भी जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज हिंदी पोएम रिसाइटेशन, देन प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्यू हिंदी वर्ड. देन मैम आस्क मी टू इंटीग्रेट सम वर्ड्स विथ EVS. ओके, जैसे मैंने जो हिंदी पोएम बोला था, हिंदी पोएम में 2 वर्ड था जैसे सूरज एंड चंदा. ओके, सो मैम टोल्ड मी यू जस्ट इंटीग्रेट दीज वर्ड्स विथ EVS. सो यू कैन इंटीग्रेट इन दिस वे. जैसे सन इज द, सूरज मीन्स सन, सो सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. Okay, and sun is the source of all energy. Sun is the burning ball and all the 8 planets revolving around the sun. So आप ये सब इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं. ओके, एंड जैसे चंदा, दैट मीन्स मून. सो मून इज द only one natural satellite of earth and revolving around the earth. So in that way you can integrate these words with EVS, with Hindi poem. Got it? So Hindi and EVS you can integrate in this way. Then sir is from maths background and sir ask different type of maths question, and I have got the update from other candidates also. So which type of maths questions are asked by the sir? जैसे sir told me that how to explain to the child 2D shape and 3D shape. How can you differentiate? And that time you have to use क्लासरूम ओनली. ओके, यू हैव टू यूज क्लासरूम एंड बच्चों को ये समझाना है कि 2D शेप और 3D शेप में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D शेप एंड 3D शेप. लिसन, दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ मी वन पेपर वाज देयर. ओके, एंड क्लासरूम इज देयर. You know, you are in the classroom and water bottle is there. So how can you explain the child by using this TLM only? You have to use this TLM as a learning resource. Okay, so look at, I told in this way. जैसे ये एक पेपर है. Okay, this is a paper, this is a page, square shape, rectangular shape page. So you can explain the child in this way. This is a 2D shape. D मतलब डायमेंशन. ओके, डायमेंशन मतलब क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप है इसका. दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ. लेंथ मतलब विच इज लॉन्गर एंड ब्रेथ मतलब विच इज शॉर्टर. सो दिस इज द 2D शेप. D मतलब डायमेंशन एंड 2D मतलब 2 डायमेंशन. वन इज लेंथ एंड वन इज ब्रेथ. So in that way, by using this simple paper, you can explain the child this is the 2D shape. इसका कोई ऊंचाई नहीं है. There is no height. You just see there is no height. इसका कोई height नहीं है because this is a 2D shape. इसका और एक जो डायमेंशन है 3D में, so ऊंचाई डायमेंशन नहीं है. There is no height. So this is a 2D shape. Then in front of me one water bottle is there. Okay. There was one water bottle. Then I have just used this water bottle as a 3D shape. Okay, so how can I explained that time?
दैट इज 3D शेप मतलब जिसका लेंथ है, ब्रेथ है और ऊंचाई भी है, देयर इज हाइट। ओके, सो दैट इज 3D शेप। D मतलब डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन। आई हैव ऑल्सो यूज्ड माई क्लासरूम। ओके, कैसे आई हैव यूज्ड दिस क्लासरूम? जैसे इन क्लासरूम, in that is in the ground floor, you can explain the child like this. There is 2 dimension, one is length, that is longer, and that is shorter, that is breadth. Okay, and classroom का एक ऊंचाई भी है, there is height. You can tell the child just look at the roof and just look at the ground floor. Okay, just look at the ground floor and just look at the roof. Then you can tell the child, now you tell me, is there any height? हाइट है, कोई रूम का कोई ऊंचाई है? देन चाइल्ड विल टेल यस देयर इज अ हाइट। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रूम का ऊंचाई है। और जो 2D शेप है, जैसे ये पेपर, इसका कोई ऊंचाई नहीं है, देयर इज नो हाइट। सो इन दैट वे यू कैन एक्सप्लेन द चाइल्ड, यस दिस इज अ 3D शेप। आपका ये जो क्लासरूम है ये एक 3D शेप है क्योंकि इसका 3 डायमेंशन है। एक है लेंथ जो लॉन्गर साइड, एक है ब्रेथ जो शॉर्टर साइड, एंड देयर इज हाइट। Okay, so that is 3D shape. So in that way I explained that this is the difference between 2D shape and 3D shape. Sir also asks that different type of formula, जैसे what is the formula of volume of cone, volume of cuboid, volume of cube, volume of cylinder, and area of cube, area of cuboid. ओके, सो आप ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला होता है ना, यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। गॉट इट? यू हैव टू प्रिपेयर द डेमो ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेप्स। यू हैव टू प्रिपेयर ये जो फॉर्मूला, दिस इज बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम मैथ, बट वाइल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर डेमो क्लासेस, देन जस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक। शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लास 1 और 2 में ये शेप्स है, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द चाइल्ड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप्स, जैसे हाउ मेनी एजेस आर देयर, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन 3D शेप्स, ठीक है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन टू द चाइल्ड। देन सम अदर मैथ्स क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। ओके, सो जैसे 25 प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। गॉट इट? देन क्वेश्चंस इज लाइक दैट, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट composite नंबर। ओके, जैसे 4 इज द स्मॉलेस्ट composite नंबर। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ composite नंबर? composite नंबर का डेफिनेशन क्या है? composite नंबर का डेफिनेशन ये है कि देयर इज फैक्टर्स मोर देन 2, देयर इज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 4 का एक फैक्टर है 1 और एक है 2 और एक है 4। ओके, सो देयर इज 3 फैक्टर्स ऑफ 4, सो दैट्स व्हाई 4 इज अ composite number. The number which has more than 2 factors, that is called composite number. Then what is called prime number? Prime number का definition क्या है? जैसे prime number means the number that has only 2 factors. ओके, जैसे 3 is a prime number. 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक है 1 और एक है 3. Okay, so that's why 3, 5, 7 all these are prime number. Okay, then which is the even number? Even number का definition क्या है? Even number means the number that is divided by 2. जैसे 2 is the smallest even number and 2 is prime number also. Okay, so one more question is there, which is the smallest even prime number? So the answer is 2. Okay, and one more question is that is give a example of co-prime number. Okay, give a example of a pair of co-prime number. Co-prime number मतलब जैसे 8 and 15, the numbers that has a only one factor and that is only 1. ये जो दोनों नंबर 8 and 15, इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 को छोड़कर और कोई भी फैक्टर नहीं है ये दोनों के बीच में जो कॉमन है, ठीक है। सो द नंबर्स, द पेयर ऑफ नंबर विच हैज ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज ओनली 1. ओके, सो दैट इज अ को-प्राइम नंबर. देन गिव अ एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर. व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर? जैसे 41 एंड 43, टू वन पेयर ऑफ प्राइम नंबर. ओके, टू ट्विन प्राइम मतलब
नंबर सेपरेटली प्राइम होगा और उसके बीच में जो गैप है वो गैप सिर्फ एक होगा। जैसे 41, 42, देन 43, 41 एंड 43 टुगेदर अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। ओके, ये दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर है। जैसे 41 और 43 के बीच में सिर्फ एक नंबर है, सो ये गैप होना चाहिए और दोनों नंबर ही प्राइम होगा। ठीक है, सो दैट इज ट्विन प्राइम नंबर। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। जैसे हिंदी पोएम आपको करना ही है। हिंदी जो वर्ण है, वर्ण का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हाउ कैन यू इंटीग्रेट वेरियस टाइप ऑफ इंग्लिश पोएम और हिंदी पोएम विथ ईवीएस, विथ मैथ्स। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग। जैसे फूड, while you are teaching food to the child,